हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 3 है। इसमें हम पैराग्राफ्स और 2021 के जितने भी हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस रहे हैं वह आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। इसकी डायरेक्शन सबसे पहले हमें पढ़नी है। इन दिस सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैसेज। आफ्टर each passage you will find some items based on the passages. Read the passage and answer the item based on them. You are required to select your answer based on the content of passage and opinion of the author only. Conventional education makes independent thinking extremely difficult. Conformity leads to mediocrity. To be different from the group or to resist environment is not easy and is often risky as long as we worship success. The urge to be successful, which is the pursuit of rewards whether in the material or in the so-called spiritual sphere. The research for inward or outward security, the desire for comfort, this whole process smoothen discontent, put an end to spontaneity and breed fear. And fear blocks the intelligent understanding of life. With increasing age, dullness of mind and heart set in. In seeking comfort, we generally find a quiet corner in life where there is a minimum of conflict. मतलब हम ऐसा कोई कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ लड़ाइयाँ कम से कम हमें देखने को मिले. एंड देन वी आर अफेयर टू स्टेप आउट ऑफ द सॉल्यूशन. This fear of life, this fear of struggle and of a new experience kill in us the spirit of adventure. Our whole upbringing and education have made us afraid to different from our neighbor, afraid to thinking contrary to be established pattern of society, falsely respected of authority and tradition. Fortunately, there are a few who are in earnest, who are willing to examine our human problems without the prejudice of the right or of the left. But in the vast majority of us, there is no real spirit of discontent or revolt. When we yield uncomprehendingly to environment and spirit of revolt then may have had died down and our responsibility soon put up in end. यानी इस हमारी जो भी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण हमें फियर रहता है उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है. एक बार हम इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं. Why does conventional education make independent thinking extremely difficult? First है इसका, it does not encourage disagreement. It does not accept conformity. It is not fact-based but problem-based. It is only religious education. तो यानी इसने पूछा है कि स्ट्रीमली हमारी एजुकेशन किस पे क्यों कन्वेंशनल एजुकेशन में हमें इंडिपेंडेंस बनाती है, थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट देती है. तो इसकी ऊपर दोबारा से हम पैराग्राफ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस के देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन. Worshipping success leads to questioning the
established practice, accepting the established practice, modifying the established practice, neither accepting or nor rejecting the established practice. Why do not most people want to find quiet corner in life? Because they do not like to be in peace, because they seek a pleasure, because they seek comfort, because they do not worship success. तो इसमें थर्ड वाला होना चाहिए कि उनको कंफर्ट जोन नहीं मिल पाती. Which word is passage mean bias, contrary, preachers या uncomprehendingly discontent. बायस्ड करता है इस पे, प्रीचर्स होना चाहिए, बायस्ड करता है. द वर्ड uncomprehendingly in the passage mean achieving success, earning money without knowing, with complete knowledge. तो देखो तीनों का तो एक ही मीनिंग निकल रहा है. with complete knowledge, achieve success, earning money, लेकिन विदाउट नोइंग ये थोड़ा अलग नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. तो हम एक बार दोबारा से पैराग्राफ को पढ़ते हैं, हमें आइडिया हो गया है इसमें. कन्वेक्शनल जो एजुकेशन है वो हमें बनाती है इंडिपेंडेंट, हमारी थिंकिंग को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. कन्फॉर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी. अब इसने खुद ने ही बता दिया. फर्स्ट लाइन में कि कन्फर्मिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, कि जो हमारी कन्फर्मिटी होती है ना, कन्फर्मेशन होता है वो हमें लीड्स करती है. लेकिन देखो इसके तो पहले दूसरे ऑप्शन में ही कन्फर्मिटी नेम तो दिया है, लेकिन इसमें नोट लगा दिया, डज नॉट एक्सेप्ट. तो ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं, यही तो हमें लीड करेगी, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता. दूसरा है दिस इज़ नॉट फैक्ट बेस्ड बट प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं की इसमें. दिस इज़ ओनली रिलीजियस एजुकेशन, ये है नहीं, तो इसका आंसर होगा इट डज नॉट इनकरेज डिसएग्रीमेंट, यानी ये हमारे करेज को बढ़ाता है, ना कि डिसएग्रीमेंट करता है. तो आंसर हो जाएगा इसमें ए. प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और टू रेजिस्ट इन्वायरमेंट इन not easy and is often risky as long as we worship success. यानी ये बाकी ग्रुप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और रजिस्ट भी करता है, यानी बाहर निकलने की कोशिश करता है इन्वायरमेंट से, जो कि इतना इजी भी नहीं है और इतना रिस्की भी नहीं है. एज लॉन्ग एज जितना कि इसकी लोग पूजा, सक्सेस होने के लिए इसकी जितनी पूजा करते हैं. The urge to be successful, which is the pursuit of rewards whether in the material or in the so-called spiritual spheres. यानी जो हमारे सक्सेसफुल का जो अर्ज है, जो हम चाहते हैं, वो प्रीशूट और रिवॉर्ड्स, प्रीशूट ऑफ रिवॉर्ड्स होता है. वेदर हो सकता है कि इस मटेरियल में और इसके स्पिरिचुअल स्पेयर, यानी जिसके हम बार बार ढूंढ रहे हैं, इसमें सर्च ऑफ द इनवर्ड और आउटवर्ड, हम उसमें सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं. द डिज़ायर फॉर कंफर्ट, जैसे कि हमें सिर्फ कंफर्ट जोन चाहिए, रिस्की जोन नहीं चाहिए. दिस होल प्रोसेस स्मूथर्स एंड डिसकॉन्टेंट होना चाहिए. पुट एन एंड टू स्पॉन्टेनियसली एंड बियर्ड फियर, यानी फियर के बिना ही सब कुछ हो. फियर ब्लॉक्स द इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. लेकिन जो फियर्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो हमारी इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग को लाइफ में क्या करता है, शो करता है.
With increasing age, dullness of mind and heart sets in. अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उसके साथ हमारे अंदर डलनेस आता जाता है, माइंड में, हार्ट्स में सेट करता जाता है, यानी इतने ज़्यादा हम एक्टिव नहीं हो पाते। जैसे यंग एज होता है उसके बाद हमारी जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ती जाएगी उसके बाद हमारी कुछ कुछ चीज़ों पे डलनेस शो होने लग जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू किसको करता है ये। क्वेश्चनिंग द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, जो स्टेबलाइज्ड प्रैक्टिस होती है उसको क्वेश्चनिंग करता है, नहीं उसको तो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है ना। जो स्टेब्लिश मॉडिफाई करता नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और रिजेक्ट भी नहीं करेगा, ये इसको करेगा एक्सेप्ट। आंसर में मतलब बी और डी में से आंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन नीदर नोर एक्सेप्ट और नोर रिजेक्टिंग तो हो ही नहीं सकता। और इसमें भी आ गया हमारा आंसर, वाई डू मोस्ट पीपल फाइंड टू एवॉइड क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ। इसके नेक्स्ट लाइन में होगा शायद। इन सीकिंग comfort, we generally find a quiet corner in life where there is a minimum of conflict होते हैं जहाँ पे। तो इसमें भी देखो ऑप्शन में दे रखा है, हम सिक को प्लेजर नहीं करते बिकॉज ऑफ सिक कंफर्ट, कंफर्ट को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका बाइस्ड का मीनिंग हम देखते हैं कि बाइस्ड का मीनिंग क्या होगा। And then we are afraid to step out of the solution. This fear of life, this fear of struggle होता है ये, and of a new experience kill in us the spirit of adventure. Our whole upbringing and education made us afraid to be different from our neighbors. हमें बहुत ज़्यादा अलग कर देती है। Afraid to think contrary, to be stabilized pattern of society. अफेड का जो थिंकिंग कॉन्ट्रेरी टू स्टेब्लिश करने का जो पैटर्न है वो सोसाइटी से काफ़ी डिफरेंट। फॉल्सली रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड, अब देखो इसमें थिंक ऑफ कंट्री का मतलब है विदाउट नोइंग, किसी की चीज़ के बिना जाने ही हम कुछ करें, चीज़ नहीं होगा इसमें। अर्निंग मनी नहीं होगा। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, बाकी आप पैराग्राफ को पढ़ के भी कर सकते हैं। इसमें देखो हम किसी भी चीज़ की, ये बोलते हैं ना कि बाइस्ड, ये इस चीज़ पे बाइस्ड करता है, तो इसका मीन होगा प्रीजज करते हैं। कॉन्ट्रेरी नहीं होगा, कॉन्ट्रेरी तो विदाउट नॉलेज होता है, ये सॉरी कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का हमने अलग से कर लिया था, कॉन्ट्रेरी नहीं होगा। अनकॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होगा विदाउट नोइंग। व्हेन वी यील्ड अनकॉम्प्रीहेंडली टू इन्वायरमेंट, यानी बिना हम इन्वायरमेंट को जाने हम उससे डरने लगते हैं। और डिसकॉन्टेंट तो होगा नहीं, तो इसका होगा प्रीजज करना। देन द नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले में आपको पढ़ के बता दिया था, लेकिन कोशिश आप यही करें कि सबसे पहले आप पैराग्राफ्स के क्वेश्चन पढ़ें, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन्स में हमारे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम थोड़ा ज़्यादा उस पर जो भी उस पैराग्राफ्स में लाइन होती है उसको ज़्यादा हम कैप्चर अच्छे से कर पाएंगे। What distance a good number of trees can cover in reducing reducing noise? 30 मीटर, 60 मीटर या 3 मीटर या 300 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस पे, ट्री कैन रिड्यूस नॉइज ओनली वेन प्लांटेड इन आइसोलेशन होना चाहिए, प्लांटेड विद फ्लावरिंग स्कब्स होनी चाहिए, दे आर प्लांटेड डेंस होनी चाहिए, प्लांटेड विद शॉर्टर वंस होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं,
उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा वो हम पैसेज में फाइंड करेंगे. Singles layers of tree is worthless as a noise barrier. Why? Noise can't uh, penetrate easily, help in growth of sculpts. Noise is sent back to the source. Noise can penetrate easily. एक तो देखो ए और डी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नॉइस है वो पेनिट्रेट नहीं करता इजीली से, और दूसरा बोल रहा है कि नॉइस कर सकता है. हायर द ट्रीज हायर द नॉइस, लोअर द नॉइस, ग्रेटर द decibels or thinner the air. How do shrubs and tall grass reduce noise? They absorb noise, they reflect noise, they divert noise, they are natural to noise. तो अब हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, देन हम फाइंड करते हैं. Noise is a common problem in both urban and rural area. ट्रैफिक नॉइज़ इन पर्टिकुलर में ज़्यादा रहता है नॉइज़ का पार्ट. Trees and shrubs are not only visually attractive but also can make effective noise barriers. There when space permitted we have to plant more trees and shrubs in area में हम लगा सकते हैं where there is a noise problem हो. By doing this noise can be reduce करता है by 6 decibels over a distance 30 मीटर, यानी 30 मीटर तक हमारे 6 decibel तक ये क्या करता है नॉइज़ को रिड्यूस करता है. तो आंसर हो जाएगा इसका ए. ए का आंसर हमें मिल चुका है. द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, एक ऐसी चीज़ जो हम अपने माइंड में रख सकते हैं इज़ दैट द प्लांटिंग शुड बी पर्टिकुलर डेंस. प्लांटिंग को और ज़्यादा डेंस कर सकते हैं. द ट्रीज विच हैव डेंस foliage and relatively vertical orientation and arrangements should be planted कर सकते हैं. वर्टिकल टाइप से अरेंजमेंट करके उसकी डेंस को हम बढ़ा सकते हैं. डेंस का मतलब हो जाता है उसको थोड़ा घना कर सकते हैं, पास पास लगा सकते हैं. It will be completely screen the source of noise. If there is any gap in the barrier, it will still allow noise to be penetrate. अगर इनमें कोई गैप रहता है तो नॉइज़ तो आएगा. तो यहाँ पे देखो हमारे ये है ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज़ ओनली वे है. कब करेंगे? जब देखो आइसोलेटेड की बात नहीं हुई, फ्लावरिंग की बात नहीं हुई, दे आर प्लांटेड डेंस में प्लांटेड करेंगे, इसकी भी बात नहीं. अब आगे सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज़ वर्थलेस एज ए नॉइज बैरियर में वर्थलेस रहती है क्योंकि ये नॉइज़ को क्या कर लेता है, पेनेट्रेट कर लेता है. आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. Single layers of trees is worthless as a noise barrier. Still allow noise pretend कर सकता है. तो नोट का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये वाले ऑप्शन होंगे नहीं. मैंने कहा था ना ए या फिर डी में से होगा. इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी. अब बात आती है हायर ट्री की. ड्यू टू इंटर रिफ्लेक्शन मल्टी रोज ऑफ ट्रीज एंड मोर इफेक्टिव बनाते हैं. मल्टीपल रोज लगा देंगे और वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए. द प्लांटेड ट्रीज मस्ट बी टोलर होनी चाहिए. टोलर के बारे में एक क्वेश्चन आया.
We can reduce noise level by 1.5 डेसिमल with each additional 3 feet of trees height तक हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये हायर ऑफ नॉइज़ की बात हुई नहीं, लोअर नॉइज़ ऑफ की बात हुई नहीं, और इसमें थिंकर्स द एयर की भी बात नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 आ सकते हैं। देखो मुझे थर्ड वाला ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने दिस वन एलिमिनेट किया। लोअर द नॉइज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें लोअर द नॉइज़ की ही बात हो रही है। ग्रेटर द डेसिबल, डेसिबल्स को ग्रेटर नहीं कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ये देखो वी कैन रिड्यूस नॉइज़ लेवल को रिड्यूस कर रहा है 1.5 डेसिमल विद ईच एडिशनल। तो ग्रेटर तो होगा ही नहीं, ये तो चांस ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल से ही हमें नहीं पकड़ना। डेसिबल में भी इसका मीन क्या दे रहा है उस लाइन से, वो भी हमें आना चाहिए, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। When the opportunity to us trees is restricted, a combination of shrubs and tall grass can be used कर सकते हैं। उसमें हम instead of terrace of gravel surface, soft grass ground cover is preferable है। It will be observe noise को rather than reflect it, यानी वो noise को ऑब्जर्व करेगा ना कि रिफ्लेक्ट करेगा। Now rows of trees, shrubs, crotons, ground covering plants, climbers and their flower not only reduce noise and provide a beautiful backyard, they also help block wind, provide shade and scrub traffic pollution को भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू स्कर्ब्स एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइज, दे ऑब्जर्व नॉइज, ये हमें बताएगा कि ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, डाइवर्ट नहीं करता, दे आर नेचुरल टू नॉइज नहीं होते, ये ऑब्जर्व करते हैं नॉइज को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ओके, ये पैराग्राफ ऊपर वाले से काफ़ी इजी लगा, तो हो सकता है मे बी कि आपको एक डिफ़िकल्ट हो, एक इजी लेवल के हो, तो वो भी देखने को हमें मिल सकते हैं। ये PQRS हमने डे 2 में कर लिया था। हम अभी जो हाई लेवल वाले PQRS, हाई लेवल का मतलब है जो बड़े पैराग्राफ होते हैं, बड़े बड़े उनके मतलब एक टाइप से पैराग्राफ ही मान लो, उनको कनेक्ट करके पैराग्राफ बनाना रहता है। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है, देन हमें क्वेश्चंस पे आना। डायरेक्शंस है, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंस ऑफ ए पैसेज के हमें दिए गए हैं। इसमें द फर्स्ट एंड 6 सेंटेंस आर गिवन इन द बिगनिंग as a S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as a P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. यानी जो PQRS के जो jumbled word है उसको हमें proper sentence में मार्कअप करना है, और S1 और S6 यानी फर्स्ट और लास्ट हमें दिया हुआ है, मिडिल पार्ट को हमें सेट करना है बस। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले S1 को पढ़ेंगे कि मीन क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस आ सकता है। मैन हैज़
प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ एस का पेयर बन सकता है। ही हैज़, ही के बारे में तो हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि कौन है ये ही हैज़ रीच्ड द मून, मून पे पहले कैसे पहुंच गया, पहले टेक्नोलॉजी की बात होगी। देन क्यू, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल, तो ये हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड कर रहा है विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नोन हाउ ही हैज़ डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल, तो वो कैसे जान सकता है कि क्या चीज़ इम्पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल है, तो हो सकते हैं इसके चांस। आर को पढ़ते हैं। मैन को ही कहा गया है, सॉरी, लेकिन रीच तो नहीं कर सकता ना इतना जल्दी मैन पे, तो वैसे ही ही इज़ ऑन द रोड टू कंकर अदर प्लैनेट्स, वह मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ही इज़ ऑन द रोड, वो रोड पे था, वो रोड पे है, टू कंकर, अभी उसने विजय, मतलब अभी वो जीत चुका है, अदर प्लैनेट्स को भी, वो रोड से अदर प्लैनेट तक भी पहुंच चुका है। ये भी हो सकता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ वो अपग्रेड हुआ है। तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पी, आर को पढ़ते हैं, पी नहीं करना था। इन टेरिटो ही हैड बीन बैकवर्ड, hitherto he had been backward, हो सकता है hitherto कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं या उनका कुछ ऐसा हो सकता है। बैकवर्ड हुए पास्ट की बात कर रहा है, तो फिर हम पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। देखो एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता बिल्कुल, तो एस वाला कट मार्क हो जाएगा। क्यू वाले के चांसेस है आर वाले। अब हम कनेक्ट कर सकते हैं, आर के बाद पी आ सकता है, बैकवर्ड है। ही इज़ ऑन द रोड टू कनकर अदर प्लैनेट्स, बस पहले रोड पे था, हो सकता है। क्यू आ सकता है बैकवर्ड, नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नोन हाउ ही हैज़ डन व्हाट वाज इम्पॉसिबल, ये भी हो सकता है। क्यू के बाद आर, ही बैकवर्ड, नो बैकवर्ड कैसे जा सकता है, उसके बाद तो क्यों नहीं होगा, यानी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है, उसके माइंड के अंदर ही आंसर आ गए, फिर उसके बाद वो बैकवर्ड क्यों जाएगा। बैकवर्ड पास्ट की बातें हैं, वो प्रेजेंट में ला रहा है तो हम पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट से हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आर से स्टार्ट होगा। हिथेरिटो ही हैड बीन बैकवर्ड, पी से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, देन हम पेयर बनाते हैं। चलो उसके बाद क्यू हो सकता है on the other planet, now with scientific knowledge and technical known as impossible, हो सकता है, लेकिन ये मून वाला तो पी के साथ सही बैठ रहा है, यानी पहले ऐसा है फिर पी है कि उसने इतना ज़्यादा कॉन्कर कर लिया है। he has reached the moon and he is on the road to conquer other planet, एस के साथ पी, एस पी का पेयर, तो एस पी का पेयर सिर्फ एक में, ऐसे आपको देखो फाइंड करना होगा, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ सकती है इसमें। स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिथेरिटो हैड बीन बैकवर्ड, मतलब सबसे पीछे था। नाउ विद साइंटिफिक नॉलेज, उसके साइंटिफिक नॉलेज के साथ अब, एंड टेक्निकल नोन,
ही हैज़ डन कर लिया था, व्हाट वाज इम्पॉसिबल, मतलब क्या चीज़ इम्पॉसिबल है। एंड देन ही हैज़ रीच द मून, वह वैसे ही मून पे पहुंचा। ही इज़ ऑन द रोड टू कंकर अदर प्लानट, को उसने कंकर किया। What was the difficult and impossible is now easy and possible। अब उसके लिए डिफ़िकल्ट और जो इम्पॉसिबल जैसे वर्ड थे वो उसके लिए इजी और पॉसिबल बनते जा रहे थे। तो देखो पी के बाद वैसे भी एसिक्स का पेयर भी बन रहा है, तो आंसर के चांसेस करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले S1 को पढ़ते हैं। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग समर्स, में हमें ज़्यादा वाटर पीना चाहिए। अब हम ऑप्शंस पे चले गए, एस पी क्यू आर एस सभी हो सकते हैं, तो अभी हम इसमें मैच करने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट विंटर्स आर मिड एक्सेप्ट इन द हिल्स। कम चांसेस हो सकते हैं मे भी, फिर भी रख लेते हैं क्योंकि क्या पता वो स्टार्टिंग की बात बताए। बिकॉज इन नदर्न इंडिया बोथ द सीजन हैव एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन, क्यू के चांसेस हाई। स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, हो भी सकता है। वाई डू यू वियर लाइटर क्लोथ ड्यूरिंग समर एंड हैवी वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर इन नदर्न इंडिया। तो देखो आर और एस का तो पेयर बन रहा है, इसमें देखते हैं। वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग द समर, समर में हम सबसे ज़्यादा पानी पीते हैं, क्यों नदर्न इंडिया एंड बिकॉज इन नदर्न इंडिया, देखो पी तो बिल्कुल भी सेंस नहीं दे रहा है इसमें, तो पी तो हट जाएगा इसमें से। बिकॉज इन नदर्न इंडिया बोथ द सीजन हैव एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन, हम पानी इसलिए ज़्यादा पी रहे हैं कि इंडिया की कंडीशन में है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन था वो, क्यू, क्यू भी बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचे हमारे एस और आर। एस और आर, स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग, हम ज़्यादा पानी पीते हैं, स्कूल क्लोथ्स रखे जाते हैं ड्यूरिंग द समर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, और नीचे इसका क्वेश्चन पूछा। तो आर और एस का पेयर बन रहा है, सबसे पहले आर को आना चाहिए। S6 भी देख लेते हैं। देयर आर वेरिएशन इन वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, की वजह से होता है, सही है। देखो आर और एस का पेयर बन रहा है, स्कूल क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर, वाई डू वियर लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग summers and heavy woolen clothes during the winter in northern India। फिर because in northern India both the season have extreme weather condition पे डिपेंड करता है। on the other hand in the northern eastern seas winters are mild except in the hills area। there are the variation in weather condition during the different season की वजह से होता है, तो इसमें एस के चांसेस ज़्यादा है आर के। सेट भी देखा, आर के बाद एस आर एस का पेयर बन रहा है, फिर क्यू पी। यहाँ पे देखो नदर्न इंडिया है, ये की पॉइंट है नदर्न इंडिया है, तो यहाँ पे भी देखो नदर्न इंडिया, तो एस और क्यू का भी पेयर बन रहा है इसमें, और इन दोनों का पेयर है, तो आर एस क्यू जितने हैं उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी लाइक में अदर टर्म्स इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कि
पॉलिसी होती है मैनी अदर टर्म्स के साथ, इस ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है। तो इसमें हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, एस बोल रहा है, हो सकता है कि जो पॉलिसी होती है इसी के लिए है, एक चांसेस हैं। आर ए पॉलिसी में बी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड और नैरो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पब्लिक और प्राइवेट, रिटन और अनरिटन। ये भी हो सकता है कि पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज दी। पी it is form of government control usually expressed in a law, a legislation and regulation or an order। तो देखो पहले तो इसमें पॉलिसी की बेसिक टर्म्स के बारे में इसमें बताया, तो हमारा आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। आर के बाद ऐसा आ सकता है दिस इट, पॉलिसी रिटर्न भी हो सकती है, इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, बाकी से अलग होती नहीं। ये पहले आना चाहिए कि ये अलग होती, फिर वो अलग अलग समझा रहा है उसको। ये पॉलिसी में भी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड एंड नैरो। तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा ना कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे कि पॉलिसी ऐसी हो सकती है वैसी हो सकती है, तो मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। आर और एस का तो पेयर नहीं बन रहा। हो सकता था कि आर से स्टार्टिंग हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा आना चाहिए था जो उससे कनेक्ट हो पाए, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट तो ऐसा आएगा। एस के बाद आर भी आ सकता है, एस के बाद क्यू भी आ सकता है। देखते हैं। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म, ए पॉलिसी में भी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड एंड नैरो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है, रिटन और अनरिटन भी हो सकती है। सही बैठ रहा है। इसके बाद क्यू, पब्लिक पॉलिसी इज वोट ए गवर्नमेंट चूज एज गाइडेंस फॉर एक्शन। पब्लिक पॉलिसी की तो बाद में बात करेंगे ना, तो पहले तो हम पॉलिसीज़ के टाइप्स बताएंगे। तो इसका मतलब एस और आर का तो पेयर है, क्योंकि यहाँ पे नाम आया ना पब्लिक, तो पब्लिक पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आर के बाद ही क्यू आएगा। आर के बाद देखो एस आर क्यू, आर के बाद क्यू आ रहा है, तो इसके चांस हमारे हाई हो जाएंगे करेक्ट होने के, ये नहीं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका S1। द धोती कुर्ता इज ए ट्रेडिशनल लुंगी टाइप्स गारमेंट worn by men in इंडिया। धोती कुर्ता पहनते हैं। अब इसके हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस हैं इसके पी क्यू आर एस, सभी हो सकते हैं, तो एक एक करके वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा हमें। पहले इसमें इस ट्रेडिशनल के बारे में बताया। इट इज़ कॉमनली worn विद ए लूज लॉन्ग ट्यूनिक। हो सकता है कि कॉमनली पहना जाता है लूज और लॉन्ग के लिए। दिस ही स्टार्टेड wearing after he abandoned his western attire of pants and shirt। बैन करने के बाद, शायद अबेंडन करने के बाद, ए धोती मेड ऑफ होमस्पन खादी कॉटन क्लोथ वॉज द गारमेंट फेवरेट बाई गांधी जी। हो सकता है कि धोती के ऊपर बात हो रही है तो धोती से कनेक्ट किया हो, तो आर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इन दोनों से, लेकिन बाद में भी धोती की बात की। द धोती इज़ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ unstitched cloth around 5 yards long, wrapped around the midriff and
टक्ड बिटवीन द लेग्स, मतलब उसमें कुछ ऐसा स्टिच विच नहीं किया जाता, वो एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है और उसको बांधते टाइम ही हमें लेग्स के बीच में से ही शेप देनी पड़ती है। तो पहले धोती के बारे में बताएगा, पहले गांधी जी को नहीं लेके आएगा। तो इसका मतलब S1 का पेयर बन रहा है लास्ट S से। देखो R भी आ सकता था, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो PQ वाले हैं वो तो हमारे ऐसे ही कट हो गए। अब R वाला कैसे कट हुआ, क्योंकि इसने ए धोती मेड ऑफ होम्पियर्स खादी कॉटन से तैयार की थी। वॉज द गारमेंट फेवरेट बाई गांधी जी का था। हो सकता था ये, लेकिन ऊपर जो बात की गई कि ये ट्रेडिशनल है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस चीज़ का ट्रेडिशनल है, कैसा दिखता है, कैसे पहना जाता है। तो वो सबसे पहले है। तो ये ऑप्शन डी, तो ये हमारा ऑप्शन बचा, इसके चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये वाली होती है। फिर उसमें है कि इट इज़ कॉमनली वोर्न, पहना जाता है लूज और टॉनिक, लॉन्ग टॉनिक रहने के लिए। देन इसी से ही हमारे इसको खादी कॉटन से बनी रहती है, तो इसीलिए ये गांधी जी का भी फेवरेट था। और गांधी जी ने दिस इज स्टार्टेड वेयरिंग, ही किसके लिए आया, गांधी जी के लिए। तो आर किससे कनेक्ट हो रहा है फिर से, कि यह स्टार्ट कर दिया था आफ्टर अबेंडेंट हिज वेस्टर्न, जब हमने बैन करने की ये बात की थी कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। तो उस रिगार्डिंग ये वाला लास्ट में जाना चाहिए कि पैंट्स और शर्ट्स को हमने क्या कर दिया था, बिल्कुल बैन कर दिया था। गांधी जी इज यूजुअली वोर्न ए सिंपल सोलो विद हिज धोती के साथ रहते थे। तो आंसर इसमें शी ऑप्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं करेक्ट होने के। ओके, नेक्स्ट है हमारा 45 में हम सबसे पहले S1 को पढ़ेंगे। लैंग्वेज इज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर कॉज चेंज, यानी हम लैंग्वेज क्या होती है कि हम एक दूसरे के जो भी कोज रहते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं। कोज का मतलब जो भी हमारे कारण होते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो कांटेक्ट कर पाते हैं हम एक दूसरे से। अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे। आर हो सकता है, क्यू हो सकता है और एस हो सकता है। तो इसमें देखो, इसने प्रोबेबिलिटी इन दो की सबसे ज़्यादा दी है, क्यू। लेकिन आर और एस भी हो सकते हैं 10% में, 90% क्यू आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले आर और एस को ही देखते हैं, हो सकते हैं या नहीं। अब लैंग्वेज की बात की है, इसमें आर और एस को देखना है। दिस गिव राइज टू न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज वेराइटी। राइज हुए न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज वेराइटी के साथ देती है हमें। कौन देता है, दिस गिव्स वेराइटी कौन देता है, तो इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो आर तो नहीं हो सकता। A historical example is that of Danish and English, which lead to a major shift in the vocabulary and grammar of English. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया, तो इसका मतलब इससे पहले इसने हिस्टोरिकल पार्ट का भी कुछ पार्ट बताया होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि लैंग्वेज एक कनेक्ट करती है और फिर इसने जो एग्जाम्पल दिए है वो इंग्लिश से रिलेटेड दे दिया, तो उसके चांसेस तो कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यू से देखते हैं।
अब देखो लैंग्वेज यहाँ पे आया था नहीं, तो लैंग्वेज यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों के कनेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ, लैंग्वेज कनेक्ट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर इंजन ऑफ चेंज का लैंग्वेज ही रहता है, तो क्यू से स्टार्ट होगा, सही है। उसके बाद क्यू के भी टू ऑप्शन है, एस आ सकता है या आर आ सकता है। देखो मेजर इंजन ऑफ चेंज के हो सकते हैं, तो इसके बाद ये एग्जांपल तो देगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। दिस क्यू, ये जो रिकॉग्नाइज करता है मेजर इंजन ऑफ चेंजेस की, ये गिव्स करता है इज ए न्यू हाइब्रिड लैंग्वेज वेराइटी, तो क्यू के बाद आर बैठ रहा है। उसके बाद भी देख लेते हैं, फिर है इसमें एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जांपल तो दे ही नहीं सकता। फिर एस वेराइटीज़ कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल क्या आएगा, ए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इज दैट ऑफ डेनिश एंड इंग्लिश विच लीड्स टू ए मेजर शिफ्ट इन वोकेबलरी एंड ग्रामर ऑफ इंग्लिश। अब जैसे ही नाम इसमें इंग्लिश आया, तो देखो इंग्लिश से इंग्लिश कनेक्ट करेगा यहाँ पे, ये वाला। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड affect both local language and English language को। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इंक्रीजिंग इंग्लिश का जो लेवल है वो बोथ पार्ट्स को अफेक्ट करता है, लोकल लैंग्वेज को भी और इंग्लिश को भी, तो चांसेस सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर सी के हो जाते हैं। ये हमें पढ़ने से एक दूसरे के कनेक्शन से ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। सेंटेंस, नेक्स्ट 46, urbanization in India has become an important and irreversible process है, अनअर्बनाइजेशन। अब इसके हम ऑप्शंस में जाते हैं, इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, तो सभी को एक एक बार हमें पढ़ना होगा। द 2030 द 2030 डेवलप्ड एजेंडा 2030 agenda of the United Nations has emphasized the role of sustainable cities for making cities inclusive, safe, resilient and suitable। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोचा हो वहाँ तक। This shows that India is in the midst of transition from a predominantly rural to a quasi urban society। यह शो करता है कि इंडिया मिडेस्ट ट्रांजिशन फॉर्म है प्रीडोमिनेंस का कोजी अर्बन सोसाइटी के लिए हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन characterized by a dramatic increase in the number of large cities। तो देखो अर्बनाइजेशन से ऐड हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि प्रोग्रेस की वो बाद में बात करें, लेकिन अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड डायनेमिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज़ हो सकता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटरमाइंड ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन हो भी सकता है।
अर्बनाइजेशन इंडिया हैज़ बिकम बनाता है इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट प्रोसेस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, यह इतना ही इम्पोर्टेंट है, डिटरमाइन ऑफ नेशनल इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन को करना। फिर एस के बाद आर, जो ये प्रोसेस चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज़ में फैलाया जा रहा है, जो कि शो करता है कि इंडिया एक मिडेस्ट ट्रांजिशन फॉर्म है प्रेडोमिनेंट रूरल कोजी अर्बन सोसाइटी का, और 2030 तक डेवलप हो जाएगा। एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ एम्फेसाइज किया द रोल ऑफ सस्टेनेबल सिटीज़ फॉर मेकिंग सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सुटेबल। As per the census of India 2011, the urban population is increasing rapidly. तो इसके बाद पी के बाद एस फिक्स आना चाहिए, तो लास्ट में तो पी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यू का ऑप्शन हमने डिलीट कर दिया है ना, ये वाला पी सबसे लास्ट में थी, पी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आर, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड करता है, तो इसमें देखो जो अर्बनाइजेशन है वो पहले नेशनल इनकम की ग्रोथ कैसे है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंग है। वैसे आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, तो देखो आर के भी चांसेस उतनी हैं, एस के भी चांसेस उतनी हैं, लेकिन हम पेयर बनाते हैं। आर के बाद क्यू आ सकता है, आर के बाद क्यू आ सकता है, आर और क्यू का पेयर बन रहा है, यहाँ भी आर और क्यू का पेयर बन रहा है, सही। फिर क्यू के बाद एस आ सकता है कि जैसे ही अर्बन सोसाइटी में इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटरमाइन करना हो जाता है ऑफ नेशनल इनकम को। नहीं, हम नेशनल इनकम को तो पहले डिटरमाइन करेंगे ना, फिर अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू और एस का पेयर नहीं बना, और लास्ट में तो पी आना ही, लेकिन एस पहले आना चाहिए, क्योंकि डिटरमाइन हम अपनी इनकम ग्रोथ को और पॉवर्टी को पहले करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एथिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के बारे में, एंड द अल्टीमेट वर्थ ऑफ एक्शन और थिंक के बारे में। हमें अल्टीमेट वर्थ इट रहता है या नहीं रहता, ये ऑप्शन हमारे लिए। इसके ऑप्शंस पे जाते हैं, इसके ऑप्शंस हो सकते हैं पी क्यू आर आर, तो सबसे पहले हम पी क्यू पे जाते हैं। For many philosophers, only humans are moral agents, being capable for acting moral or immoral. Humans आर मोरल एजेंट होते हैं जो कि कैपेबल करते हैं एक्टिंग को मोरल और इमोरल करने का, हो सकता है। क्यों, देखते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स आस्क अबाउट द moral relationship between humans and the world around us, ये भी हो सकता है। आर को पढ़ते हैं। एथिक्स
evaluated the relationship rules, principle or codes that required or forbid certain conduct। देखो इसमें सबसे पहले इथिक्स इज़ ए ब्रांच होती है फिलोसफी की जो कंसर्न करती है विद डिस्टिंक्शन बिटवीन कि क्या सही है क्या गलत है, मोरल्स के बारे में, और अल्टीमेट करती है कि कौन से एक्शन हमारे लिए वर्थ इट रह सकते हैं। तो उसके बाद में देखो इथिक्स का सेंस ज़्यादा जा रहा है, यहाँ भी इथिक्स का है लेकिन इसको इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम इथिक्स के बारे में ही जानेंगे, इसने ब्रांच बताया। और इथिक्स करता क्या है? एथिक्स एलिवेट करता है रिलेशनशिप को, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, कोड को, जो कि रिक्वायर्ड और फॉरबिड कर सके, यानी आगे बढ़ा सके या रोक सके सर्टेन कंडक्ट को। तो आर के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। फॉर मैनी फिलोसोफर तो बाद में आएंगे, तो इसका मतलब क्यू के चांसेस ज़्यादा है, तो पी नहीं होगा, क्यू नहीं। आर के बाद एस हो सकता है या क्यू, आर के बाद एस हो सकता है या क्यू। तो देखो वैसे तो हमें सीधा ही दिख रहा है कि इन्वायरमेंट से एथिक्स की बातें जोड़ रहा है, रिलेशनशिप नेम आए रिलेशनशिप को जोड़ रहा है, तो क्यू के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर भी एस को पढ़ लेते हैं। वैल्यू इज़ ए मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग। अब किस चीज़ की वैल्यू है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ये एस वाला सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं है, कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि पी को पढ़ते हैं। फॉर मैनी फिलोसोफर ओनली ह्यूमन आर मोरल एजेंट बीइंग कैपेबल फॉर एक्टिंग मोरल्स और इमोरल, कि एक्टिंग करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। वैल्यू इज़ ए मेजर ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग। अब पी एस से कनेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या वर्थ इट रहेगा समथिंग, उसके बारे में बताया कि जो फिलोसोफर जो सोचते हैं बताते हैं। बट वैल्यूज़ कैन बी ईदर इनहेरेंट और कन्फर्ड कर सकती है हमें, यानी बढ़ा भी सकती है रोक भी सकती है। तो देखो वैल्यू इसका मतलब जो लास्ट होगा वो तो हमें पता चल गया क्या होना चाहिए, हमारा एस होना चाहिए। वैसे भी हमने एलिमिनेट तो कर ही दिया, तो S6 और S का पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं दोबारा से। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी concerned with the distinction between right and wrong, morals and ultimate worth of action or things values. Ethics evaluate the relationship, rules, principle or codes that require or forbid certain conflict को करता है ये। Environment ethics ask about the moral relationship between humans and world around us. For many philosophers, only humans are moral agents, being capable of acting morals or immoral. Value is a measure of the worth of something, but the value can be either inherent or conferred भी कर सकती है हम। तो चांसेस किस पार्ट के हो जाएंगे, ए पार्ट के हमारे हो जाएंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 48। इसका सबसे पहले हम S1 पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया introduced on 26th of Jan 1950 laid down certain basic principle and values पे। अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस सभी हो सकते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। इट वॉज ऑल्सो किसके बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके लिए था। इट वॉज ऑल्सो टू बी ए फेडरेशन। अब फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन होता है कि रूल्स का हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं,
with the demarcation of spheres of action between the यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फेडरेशन होता है। इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल और वैल्यूज़ पे डिपेंड हो सकता है, लेकिन हो सकता है। इंडिया वॉज टू बी ए secular and democratic republic with a parliamentary system based on adult franchising है ये हमारा। तो क्यों के चांसेस ज़्यादा हैं। These include freedom of speech and expression, freedom to assembly, peaceful etc. इसके चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे कि ये इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो पहले तो इसमें कुछ ऐसी बात आएगी ना कि ये चीज़ हमें मिला है तो इसमें हम ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका मतलब आर तो बिल्कुल भी नहीं है। इट गारंटीड ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बताएंगे ना कि क्या चीज़ सेकुलर है, उसके बाद हम गारंटीड प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे भी नहीं। और एसिक्स को भी पढ़ लेते हैं कि क्या पता किसी से कनेक्ट हो रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed all citizens equally before the law and equality of opportunity in government employment। तो ये देखो जो एस है लास्ट वाले से भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन एस तो लास्ट में है ही, हमारा बचा आर। हाँ तो आर में कनेक्ट हो रहा है लास्ट से। अब आते हैं हम टी और एस पे। तो देखो टी का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, फेडरलाइजेशन ऐसे हो सकता है। पहले फेडरलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, पहले हम जनरल बात करेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ना कि ऐसे 26 जैन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ थे। फिर हम बताएंगे इंडिया वॉज टू बी ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारी कंट्री विद ए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि बेस्ड रहता है एडल्ट फ्रेंचाइजी पे, मतलब वोट्स पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा। तो क्यों के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो आंसर ए के चांसेस होने के सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम सेट करते हैं इट वॉज ऑल्सो। अब ये ऑल्सो आया तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑल्सो के पहले कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस है जो इसी से ही मैच हो रहा है, तभी हम ऑल्सो का यूज़ करते हैं। इट वॉज ऑल्सो टू बी फेडरेशन विद द डेमोक्रेशन ऑफ स्पेयर्स ऑफ एक्शन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देन है हमारा एस। इट गारंटीड करता है ऑल द सिटीजन्स को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जिसमें इंक्लूड्स होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एक्सेट्रा। फिर लास्ट वाला इसी से कनेक्ट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed all citizen equality before the law, equality of opportunity in government employment। ऑप्शन ए के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हम S1 पढ़ेंगे। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 envisages creation of a digital health technology ecosystem की क्रिएशन करती है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे आर एस टू। तो सबसे पहले आर और एस को पढ़ते हैं। पॉलिसी की बात हो रही है तो द पॉलिसी आ सकता है। द पॉलिसी एम्स एट द डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन system that serves the need of all stakeholder and improves efficiency transparency। चांस हो सकता है कि पॉलिसी है और इसका एम है। देन हम पढ़ेंगे एस को। दिस विल बी कैरिड आउट बाय operationalizing firstly 1.5 lakh health and wellness centers offering primitive and primary care। देखो सबसे पहले हम उसकी एम की बात करेंगे तो इसका मतलब हमारा एस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्यों की बात करते हैं। दिस विल ऑल्सो, ये ऑल्सो नाम आ गया तो इसका मतलब इससे पहले तो कुछ है। This will also foster a linkage across public and private health care जो हमें प्रोवाइड करवाता है। तो पहले हमें द नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया गया, फिर हम इसके एम के बारे में बताएंगे। और ये है ऑल्सो फोस्टर करती है लिंकेज अक्रॉस पब्लिक को। तो इसका मतलब क्यू के चांसेस कम हो गए। हो सकता था इसके 90% चांसेस भी, क्योंकि ऑप्शन में क्यू के दे रखा था, लेकिन ऑल्सो की वजह से हमारा क्यू ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हमारे थर्ड ऑप्शन के क्या हो जाते हैं सबसे ज़्यादा चांसेस। उसके बाद देखो हम दोबारा से रीड आउट करते हैं। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 envisages creation of digital health technology ecosystem। The policy aims at developing an integrated health information system that serves the need of all stakeholders and improves efficiency and transparency। देन उसके बाद आएगा हमारा क्यू, क्योंकि इसी में ऑल्सो दिस विल ऑल्सो फोस्टर ए लिंकेज अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर में हमें इसके लिंकेज मिल जाएंगे। देन हमारा है पी, आयुष्मान भारत कॉम्प्रोमाइजिंग ट्विन मिशन इज सेट टू ट्रांसफॉर्म द नेशनल हेल्थ सिस्टम को करता है। उसके बाद दिस विल बी कैरिड आउट करता है आयुष्मान भारत। वैसे भी पी और एस का पेयर बन रहा था। 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स ऑफरिंग प्रिवेंटिंग एंड प्राइमरी केयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांस। और सेकेंडली फर्स्टली तो हमें बता दिया इसने, और फर्स्ट और सेकंड से S6 का भी पेयर बन रहा था। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अप 5 लाख पर ईयर पर फैमिली फॉर दैट deprived 10 करोड़ प्लस हाउस होल्डर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो सारे ऑप्शंस हो सकते हैं टी क्यू आर एस। तो ये जैसे ही हमें वन ऑप्शन मिला हम सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इकोलॉजी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बताता है। कोई उसके पास्ट के बारे में बताता है, कोई उसके प्रेजेंट के बारे में बताता है, कोई उसकी लाइफ के बारे में बताता है। तो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। सम हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन्स। हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर बात की है कि सम मोस्ट स्पीसीज distribution result from a combination of all these factors। ये भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट होता है उसको हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ऑल दीज फैक्टर्स से, इकोलॉजी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। बट तो देखो इकोलॉजी की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन और तो बट तो आ नहीं सकता। बट बायोजियोग्राफर्स टेंड्स टू स्पेशलाइज इन इकोलॉजी एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल बायोग्राफी और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट।
Ecological biographers are interested in the facts of environmental factors. एस भी हो सकता है, तो मतलब आर के चांसेस हो गए। अब उसके बाद पेयर बनाते हैं, क्यों के बाद आर आ सकता है। Most species distribution result from a combination of all these factors से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रिजल्ट का, बट बायोजियोग्राफर्स टेंड्स टू स्पेशलाइज इन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में करेंगे स्पेशलाइज, जैसे कि इकोलॉजी, बायोग्राफी और हिस्टोरिकल एक्सेप्ट हो सकते हैं। बी के बाद क्यों, सम हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a center of origin or origins कि सम हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफर्स का इंटरेस्ट रहता है उनके सेंटर ऑफ ओरिजिन को फाइंड करने में। मोस्ट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। पी और क्यू का तो पेयर बिल्कुल भी नहीं बन रहा कि एक में बात कर रहा है कि मोस्ट स्पीसीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके रिजल्ट की कॉम्बिनेशन का, इस भी फैक्टर पे रहा है उसका रिजल्ट क्या रह रहा है। और उससे पहले हम इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम स्पीसीज के बारे में बात करें उसको फिर रिसर्च होगी। ऐसा हो सकता है कि इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इफेक्ट देखने, जो भी इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स में जो भी इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रखते हैं इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स। तो सबसे पहले तो हमें स्पीसीज ही फाइंड करनी पड़ती, मतलब एस के चांसेस भी नहीं, तो हमारे क्यू के चांसेस ज़्यादा हो गए। सबसे पहले स्पीसीज को फाइंड करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका रिजल्ट फाइंड करेंगे, देन जो भी इकोलॉजिकल जो भी बायोग्राफर्स हैं या जो भी हमारे बायोजियोग्राफर्स हैं, हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफर्स हैं, फिर उसके रिसर्च करेंगे। तो देन देखो दीज फैक्टर्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड करना ये एक एक्सेप्ट हो सकता है। देन इकोलॉजिकल जो बायोजियोग्राफर्स हैं उनका इंटरेस्ट रहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, और साथ में इसी में भी इंटरेस्ट रहता है सम हिस्टोरिकल, यानी इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स का इंटरेस्ट रहता है, उसमें से कुछ का इंटरेस्ट रहता है कि इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन्स को हम फाइंड करें। अदर प्रीफर टू इंटरप्ट बायोजियोग्राफिकल हिस्ट्री थ्रू वाइकेरेंस यानी रेंज ऑफ स्प्लिटिंग इवेंट्स को भी रिसर्च करने में रहता है, वो भी इस चीज़ को प्रीफर करते हैं। तो इसमें भी देखो एक चीज़ दे रखी है, प्रीफर के साथ मतलब आता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो ये हमारे पैरा जंबल्स हो गए पी क्यू आर एस के या एस वन एस सिक्स के भी आप बोल सकते हो। ये आपको मैंने करवा ही दिया था हमारे डे 1 में। अब आते हैं हम इसके एंटोनिम्स पे। देखो इसमें जो भी हमें वर्ड्स दिए इसका आपको डायरेक्ट मीनिंग पता है तो आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज इसके सेंटेंस को भी देख के मतलब कर सकते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना। ईच आइटम इन द सेक्शन कंसिस्ट करते हैं और सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स
दिए गए नीचे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स हमें देखने हैं इसके। डू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो देखो इसमें है हिज आर्ग्यूमेंट आर नॉट वैलिड, उसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। पीपल्स कंसिडर इट बॉम्बास्टिक, यानी जो पीपल्स है उसको क्या बोल रहे हैं कि ये तो बस ऐसे ही बोले जा रही है, उसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, या ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो इसके मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं बॉम्बास्टिक का मतलब, तो वर्बोज का मतलब भी ज़्यादा बात हुई। आउटडेटेड का मतलब बहुत, मतलब कुछ रियल कंटेंट नहीं है, एक जैसे मीनिंग दे रहे हैं ये। तो नॉट ट्रू का मतलब ये कि कुछ इसमें सच्चाई नहीं है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमें इसका अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। बॉम्बास्टिक का मतलब बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बिल्कुल सही सही बोल। द डिसीजन वॉज absurd for many of the members of the team, कि उसका जो डिसीजन था वो absurd था many of टीम मेंबर्स के लिए। तो मतलब गुड ही रहा होगा, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसमें पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव, क्योंकि जो टीम मेंबर हैं उसके लिए वो डिसीजन एब्सर्ड था, एब्सर्ड। तो देखते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट। बिजार्ड का मतलब एकदम स्ट्रेंज, तो हो सकता है कि टीम मेंबर के लिए वो डिसीजन एकदम स्ट्रेंज हो, मीनिंगलेस हो। इन दोनों का तो सेम ही मीनिंग हो गया, तो दो दो तो आ नहीं सकते। थॉटफुल हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है। तो देखो थॉटफुल से ज़्यादा रीजनेबल हो सकता है इसका अपोजिट में, कि इसका डिसीजन बिल्कुल बेकार था, और इसका अपोजिट हो सकता है कि उसका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रीजनेबल था। थॉटफुल का मतलब होता है कि एक बस हम उस पर विचार कर सकते हैं। रीजनेबल का मतलब हमें मानना ही होगा, रीज़न के साथ दे रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। Relatives of deceased have been informed about the accident. Deceased of relatives को पता चला, informed हुआ about the accident के बारे में। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है कि deceased of relative, यानी जो भी ये पर्सन है उसके रिलेटिव, इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, इंजर्ड है, हो सकता है अलाइव है, डेड है, या सर्वाइव्ड है। तो इसका वैसे भी हमें अपोजिट मीनिंग बताना कि इस एक्सीडेंट के बारे में उन्हें पता चला। डीकेस्ड, डीकेस्ड मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, तो इंजर्ड भी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, डेड भी, और अलाइव पॉजिटिव है, सर्वाइव्ड भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही ढूंढने पड़ेंगे। तो अलाइव नहीं हो सकता, होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन इसमें सर्वाइव्ड ही आएगा। जैसे डिकेज्ड है वैसे ही सर्वाइव्ड है। ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट के ही आएगा। एंटोनिम्स देखना है। डिकेज्ड का मतलब जो भी इंजर्ड है या फिर जो भी डेड हुआ है उनके रिलेटिव्स को इनके बारे में पता चला। At last she was able to get some solace as the matter has been resolved amicably.
देखो इसमें बी भी हो सकता है, इसमें डी भी हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं दोनों। इसमें आ जाएगा आपका एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम solace as the matter has been resolved amicably. Comfort, relief, punishment, aggression. अब देखो कंफर्ट रिलीफ एक जैसे दो मीनिंग तो हो नहीं सकते। At last she was able to get some solace as the matter has been resolved किया है, तो मैटर को कोई रिसोल्व करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पनिशमेंट वाले कुछ एग्रेसिव। इसका मतलब है कि उसने मैटर को बहुत अच्छे से सोल्व कर दिया है, और उसका अपोजिट मीन हो जाएगा एग्रेशन में, यानी खतरनाक रूप से। अब है 21st century has turned out to be a century of problem, contrary to be thinking that it could be a better time। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 21st सेंचुरी टर्न आउट किया है बी ए सेंचुरी ऑफ प्रॉब्लम से। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है ना हमारे जैसे हिस्ट्री में, कॉन्ट्रेरी मतलब सिमिलर ही पार्ट पे, जिस टाइम वो था उस टाइम ये कॉन्ट्रेरी। तो इसका मतलब ये देखो डिफरेंट डाइवर्ट ये सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग हो नहीं सकते ये वाले ऑप्शन का। गुड फेथ एक अलग मीनिंग दे रहा है और सिमिलर एक अलग मीनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब हम एडजस्ट भी कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी में टर्न आउट आया था ये सेंचुरी ऑफ प्रॉब्लम से। सिमिलरली टू बी थिंकिंग दैट इट कुड बी ए बेटर टाइम, और ऐसा भी सोच सकते हैं सेम टाइम पे कि वो एक हमारे लिए अच्छा टाइम था, तो सिमिलर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस इसमें है द पोइट सेड द पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग के साथ है। पोइट्री के बारे में कहा उसने कि ये प्रिपेयर्ड है, अलर्टेड है, डेलिब्रेटेड है या वेल एग्जीक्यूटेड है। तो इसमें देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब कुछ पॉजिटिव मीनिंग में दे रहा है, तो कि जो पोइट ने कहा कि जो ये पोइट्री है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग के बारे में, तो इसका मतलब कुछ पहले से उसने प्रिपेयर किया तभी उसमें पावरफुल फीलिंग्स है। तो इसका मतलब अलर्टेड है, उसके बारे में पहले से पढ़ा है तभी तो अलर्ट हुआ। वेल एग्जीक्यूट है, अच्छे से डिफाइन किया है, मतलब सेम ही मीनिंग दे रहा है स्पॉन्टेनियस का, तो इसका मीन हो जाएगा थर्ड। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। डिप्लेरेट का मतलब होता है कुछ भी आपने पहले से तैयार ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन exonerated as he tendered an apology। तो एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा इसका अपोजिट की अंदर जाने से। अब देखो यहाँ पे ऑनर्ड करना, पार्डन करना, फैसिलिटेट करना, इसके सभी के पॉजिटिव में, और कन्विक्टेड करना। ही हैज़ बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपोलॉजी, जैसे ही उसने अपने टेंडर किया अपनी अपोलॉजी को, तो उसको एक्सोनरेटेड कर दिया गया या किया जा चुका। तो ऑनर्ड तो उसको करेंगे नहीं, पार्डन नहीं, मतलब पार्डन तो सेम ही हो गया ना कि उसको एक्सोनरेटेड यानी दोष मुक्त कर दिया गया, और
फेलिसिएटेड का मतलब भी ये होगा कि उसको ऊपर किया। कॉन्विक्टेड का मतलब है इसका अपोजिट, कि उस पर कॉन्विक्ट किया जा रहा है, कुछ नेगेटिव सेंस में उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है। Persuasion is initial for people to work as a team. Persuasion, अब परसुएशन का हम देखते हैं, हमें नहीं मालूम है कि क्या मीन होता है। डिसलाइक करना, डिस्करेजिंग करना, कन्विंसिंग करना, डिटर करना। तो इसमें देखो, डिसलाइक करना, कन्विंसिंग करना, डिटर करना। परसुएशन, परसुएशन एक एक करके समझते हैं। डिसलाइक इज इनिशियल, ना इसका अपोजिट मीन देखना है हमें। परसुएशन इज इनिशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम। तो डिसलाइक तो नहीं हो सकता। परसुएशन का मतलब होता है धैर्य, कामनेस, या फिर उसको मोटिवेटेड करना, एक टीम वर्क का काम करता है। तो डिसलाइक तो नहीं हो सकता। लाइक के सेंस में बात नहीं कर रही है, तो अपोजिट मीन क्यों। और कन्वेंसिंग भी नहीं करना है, मतलब और डिक्रेज थोड़ी ना करना है वर्क टीम। डीटर का मतलब दूर जाना, इंक्रेजिंग होगा, क्योंकि क्रेज बढ़ाता है एज ए टीम वर्क को, तो डिक्रेजिंग होगा नहीं। एवरी हैबिटेट हैज़ सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। एवरी हैबिटेट एज सम डिस्टिंक्ट वेजिटेशन, यूनिक, कॉमन, स्पेशल, अनफेमिलियर। तो देखो, यूनिक, स्पेशल और अनफेमिलियर, इसका मीन सभी का एक ही हो गया है, कि मतलब कोई चीज़ ऐसी जो सिर्फ एक हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। इसमें बोला है कि जो हैबिटेट होते हैं, यानी जो भी उनके रहने सहने की जो भी जगह होती है, वो एक कॉमन वेजिटेशन होते हैं, जो कि डिफाइंस करते हैं उसके इकोसिस्टम को। देन अब हमारा लास्ट क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को हम एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ ए ब्लैंक स्पेस विथ 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. It sounds like a great idea. देखो एन तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी, दा भी नहीं आ सकता क्योंकि पहले कुछ स्पेसिफिक की बात नहीं है। सम ग्रेट आइडिया हो नहीं सकता, तो इसके एक ही चांसेस हैं 100%. It sounds like a great idea. People getting instantly excited when they hear phrase education for peace. Hear, जैसे ही बहुत सारे लोग इसके लिए instantly excited थे, they hear the phrase, मतलब किसी स्पेसिफिक को डिफाइन कर रहा है, तभी इसने इन्वाइटेड कोमा में क्या किया है, डिनोट किया है। एजुकेशन फॉर पीस,
तो इसमें द आना चाहिए। स्पेसिफिक को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो द के मीन्स में डिफाइन करेंगे। द हियर द फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस or the title of course that calls itself peace education. About a decade ago, I proposed such a course in my institute. Such any course नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रपोज किया था कोर्स को। तो देखो एनी कोर्स आ नहीं सकता, सच द कोर्स कोई स्पेसिफिक कोर्स है नहीं क्योंकि पहले का इसमें किया। सम कोर्स हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक कोर्स को मैंने कुछ 10 को पहले प्रपोज किया था। द आइडिया ऑफ ए कोर्स, अब देखो यहाँ पे देखो आ कोर्स ही आया, आ कोर्स, द आइडिया ऑफ आ कोर्स कोर्स का आइडिया पीस ऑफ एजुकेशन पर। अब देखो द आइडिया ऑफ कोर्स टू पीस एजुकेशन नहीं होगा, से नहीं होगा, इन अंदर तो बिल्कुल नहीं होगा, के लिए नहीं होगा, पीस ऑफ एजुकेशन पर, यानी जो भी आपका ये आइडिया चल रहा है पीस ऑफ एजुकेशन पर, हैड occurred to be me on the way back from one of the neighboring countries। अब देखो वन ऑफ के बाद जो भी हमारा नाउन रहेगा वो, जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा वो प्रोनाउन। वेयर आई मेट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई कुड नॉट फाइंड, अब आई कुड नॉट फाइंड क्या फाइंड नहीं किया उसने, कोई भी डिफरेंसेस, आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस मैंने फाइंड नहीं किया, ये आ नहीं सकते। डिफरेंसेस किसके बीच में, अब देखो दो चीज़ें इसने पहले से ही दी हुई है और आप कंजक्शन भी फाइंड कर सकते हैं आगे थोड़ा। द इंडियंस एंड दियर काउंटर पार्टनर, अब एंड आया, एंड के साथ देखो अमंग टू से ज़्यादा के लिए आता है, टू भी नहीं आएगा और विद भी नहीं आएगा, इसमें आएगा बिटवीन और एंड का सेंस है। डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड दियर काउंटर पार्टनर in the order country on peace with living together and living together because living together, देखो इसमें कोर्स का तो है ही नहीं कि कंट्री ने उनके साथ उनके डियर पार्टनर काउंटर पार्टनर के साथ किया, तो इन द अदर कंट्री ऑन पीस रहना चाहती है एंड लिविंग टुगेदर उनके साथ मतलब काम करना चाहती है, तो विद नहीं आएगा। एंड लिविंग टुगेदर, टुगेदर में विद का सेंस यहाँ रहा है। इट मेड बी थिंक दैट इफ वन लर्नर्स टू लिव विद ए कॉन्फ्लिक्ट, वन लर्नर के साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइफ ग्रोस अक्रॉस इट लाइक ग्रास, ग्रास, अब देखो टू के बीच में लाइक ग्रास और ट्रीज, ट्रीज और ग्रास जैसे होते हैं, ट्रीज ग्रास विद ट्रीज नहीं आएंगे, फोर ट्रीज नहीं आएंगे, सब नहीं आएंगे, तो द लाइक ग्रास और ट्रीज। आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टैंड्स चिल्ड्रंस लुक demonstrated for peace, बट पीस तो नहीं है, दैट पीस आ सकता है क्योंकि हम दैट कंजक्शन का यूज़ लिविंग और अनलिविंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। द आर्ग्यूमेंट एंड स्टैंड्स चिल्ड्रंस लुक demonstrated that peace comes from understanding conflict well, not necessarily by solving it, या necessarily with solving it नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फोर बाय, इसी के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि सॉल्व करना, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स है, इसमें हमें सिनोनिम्स है जैसे कि डायरेक्शन भी हमें बता रही है,
तो देखो कॉमोशन में हो जाएगा कि एक साथ बहुत ज़्यादा साउंड लेना। तो देखो इन तीनों का सेम मीनिंग है। पीस का मतलब एकदम पीसफुल शांति, साउंड का मतलब भी पीसफुल शांति। साउंड का मतलब ऐसे मत सोचो शोर शराबे से, साउंडिंग कोई म्यूज़िक चल रहा है उसमें हो सकता है, लेकिन साउंड का मतलब होता है एकदम पीस। फ्योरोसिस का मतलब साउंड। तो ये तीनों एक मीनिंग है, तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। द इनहेरेंट डेंजर का मतलब होता है उसको बिल्डअप करना या उसको और ज़्यादा बढ़ाना। तो देखो आउटवर्ड एकदम बाहर, डिफरेंट अलग, होलो अलग, इनबिल्ड इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम है, जो भी तुमने डेंजर को इनबिल्ड किया है, दैट इट वुड लीड टू मैनी मोर प्रॉब्लम्स को क्रिएट वो कर सकता है। रिप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो देखो डिमोस एडमोनाइज्ड, एप्रिशिएट करना बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेज्ड करना बिल्कुल भी नहीं होगा, डिसलाइक का मीनिंग नहीं जा रहा। तो एडमोनाइज, एडमोनिश्ड करना। द सम पीपल थिंक दैट दियर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होगा टेम्परेरी, पावरफुल, एवरलास्टिक। और ऑल परsuasive। सम पीपल का सोचना है कि उसकी स्ट्रेंथ है ना वो परपेचुअल है। तो देखो टेम्परेरी तो है नहीं उसकी स्ट्रेंथ, पावरफुल भी नहीं है। पावरफुल और स्ट्रेंथ का मतलब एक ही है। ऑल परसेसिव या एवरलास्टिक यानी आगे तक चलने वाली, लॉन्ग टाइम तक। वन एक्शन exemplify one's altitude and values. Device empathizing, ask for, demonstrated। अब देखो वंस एक्शन एग्जेम्पलीफाई करते हैं वंस एटीट्यूड एंड वैल्यू को, तो डीमॉन्स्ट्रेटेड एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, डिवाइस नहीं करते, एम्फेसाइज सेम्फेथाइज नहीं करते, आस्क फॉर बिल्कुल भी नहीं। द क्रस का मतलब होता है कोर ऑफ इशू, क्या चल रहा है। द competency, each child develop his her competency based on context and inputs offered learning। कैपेबिलिटी, थिंकिंग, नॉलेज, आइडियल। तो देखो कैपेबिलिटी बेस्ड करती है उनके इनपुट्स और लर्निंग वाले पे। थिंकिंग नहीं होगा, नॉलेज नहीं, उसकी कैपेबिलिटी ही करेगी कि उसके इनपुट्स क्या रहेंगे। इंडस्ट्रीज में हो जाएगा नॉलेजेबल, डाइलेंट, नॉलेजेबल, इंडोलेंट, इंसीरियस। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडूरियस यानी नॉलेजेबल। द इंडिकेट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड अ ग्रुप अनहैप्पी। रिसेंटफुल, कॉन्टिजेनल, अनरूली, सपोर्टिव। अनहैप्पी किया तो सपोर्टिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रिसेंटफुल भी नहीं हो सकता। सॉरी, रिसेंट का भी तो नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। कौन
जेन्युइन, अनट्रूली हो सकता है, रिसेंटफुल हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट एटीट्यूड है उसका। तो अनट्रूली किसी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है अपने बिहेवियर से। रिसेंटफुल शो कर रहा है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट डे में कंप्लीट करवा दिया था। ऐसे हमारा पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है 3 डेज़ में। नेक्स्ट वाले आगे वाले डेज़ में हम कोशिश यही करेंगे कि 1 डे में पूरे के पूरे पेपर को ही हम सोल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच।